السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج ہم شو کا آغاز ہی کریں گے مخبرنامہ سے. جی بابا جی. شوم شڑک پرک پرک پرک. آج بابا بہت افسردہ ہے بچہ. وہ کیوں؟ بابے دی آف شور مجھا پھڑیاں گئی ہیں. آف شور؟ جی بابے دا بزنس باہر بہت ہے. اچھا. ہاں جی، وہ نام بابا جی دا بھی آ گیا. کیوں بابا جی؟ حقیقت ہے یہ؟ نہیں بچہ، طبیعت ذرا بابے دی بوجھل جئی ہے. یہ کیا بات کی آپ نے؟ بابا نے بکواس کی تھی. اصل تو جی بابا جی اندروں بوجھل کیوں نے جی؟ ہاں جی، کیا وجہ کیا ہے؟ بابا جی منگنی کر رہے ہیں اپنی منگنی؟ اور اپنے سنڈے دی کرنی سی. اپنی منگنی کر رہے ہیں بابا جی. کوڑی بابے نو بہت پیار کر دی ہے. اس نے بابا جی کو دیکھا نہیں؟ نہیں جی. کیوں؟ انی ہے نا. بہت پیاری بچی ہے، خوبصورت ہے گی، لیکن وہ گھر دے نہیں من رہے. کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بابے نو ویکھ لیا. لیکن بچی جڑی ہے نا، وہ کہندی جی میں بابے نال ویاہ کرنا ورنہ میں اپنی جان دے دیاں گی. ہائے. ایس جمعے بابا جی دی منگنی ہوئی ہے جی. واہ واہ واہ. کی رونقاں سن جناب اتھے. کیا رونقیں تھیں؟ بابا جی بوسکی دا سوٹ پایا سی. بوسکی کا؟ ہاں جی. اف. اندازہ کرو کنی بوسکی لگی ہونی. 2 گھوڑا بوسکی جناب. نہیں، بابے نو 30 کوڑا بوسکی پائی. سر ویسے اس عمر میں منگنی نہیں ہوتی. اور کیا ہوتا ہے؟ سر کل ہوتے ہیں. بابے دے سہرے نے شرط رکھی کہ بابا ایتھے ڈانس کرے، نچے. بابا اٹھیا نچیا. بابے نے جھومر پائے جناب. آہا. تسی تے سمجھے جھومر نو. ہاں جی. سر تسی کدی جھومر پایا؟ ہاں جی، بہت بچپن میں. بہت بچپن میں. ذرا ایک اندر سٹیپ کر کے دو. بس بابا گھومے، بابے نے اتنا تیز گھومے ہیں بھئی پکھا کی گھومدا ہے. واہ واہ. بابا ڈگیا کڑی دی نانی دے اوتے. اما ہوری فوت ہو گئے. منگنی جناب اتھے رک گئی. مائی دا جنازہ لے کے گیا اتھے قبرستان. اونوں قبر چ لایا ہے. بس دعا دے دوران اتنے بابے نو دھکا بجا. یہ پھر نانی تے ڈگ پیا. نانی اٹھ کے بہ گئی. وہ سارے ڈر کے دوڑ گئے. کڑی دا نانا دوروں بابے نو کہی جائے، اوئے ایک بار پھر ڈگ اٹھ پئی ہوں. نانا پھر غم نہ فوت ہو گیا سر. کیوں؟ نانی بچ جو گئی سی. یہ سارے پھر گھر چلے گئے. پھر منگنی ہو گئی. کس کی؟ بابے دی تے نانی دی. یہ سزا دے طور تے ہوئی ہے. یہ ہن اس لیے افسردہ نے. اچھا، لگتا ہے آج ان کے پاس مخبری کوئی نہیں ہے. شوم شک پرک پرک پرک. بابے نو کدی زندگی چ چیلنج نہیں کرنا بچہ کہ بابے کول مخبری نہیں ہے. بابا اپنا سب کچھ لٹا دے گا. آج بڑی بڑی اعلیٰ مخبری بابے کول. جی. راول پنڈی میٹرو میں پہلے تو تم لوگوں نے سیدھی کرپشن کے قصے سن رکھے ہیں. ہاں جی. اس دفعہ نیب نے انتہائی عجیب و غریب کرپشن پکڑی ہے جس پہ میرا بھی دھیان نہیں گیا بچہ. حالانکہ تمہیں پتہ ہے بابا کیڈا خبیث ہے. انہوں نے نہیں سمجھ لگی بابا جی نو بھی. میٹرو ٹریک بنانے میں بجلی کی جتنی بھی چیزیں لگائی گئی اور اکھاڑی گئی، سب کی سب میں کرپشن کی گئی بچہ. کیسے؟ بچہ یہ جتنی تاریں، جتنے کھمبے، جتنے ٹرانسفارمر اکھاڑے گئے، سب کے سب سرکاری گودام میں نہیں گئے. یعنی رستے میں ہی؟ ہاں جی، وہ کوٹ پر لے. اوئے ہوئے ہوئے. اور نیب نے یہ نئی فائل کھول دی ہے بچہ، جس میں 2 سیاسی اور 1 سرکاری ڈائریکٹر ہے بچہ. سیاسی لوگ تو بچ جائیں گے لیکن اس ڈائریکٹر کی بلی چڑھ جائے گی. بلی کیا چڑھے گی؟ اگر یہ انوالوڈ ہے تو اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لیکن میں انٹرسٹڈ ہوں سیاسی شخصیت کون سی ہے. اے میٹر تو جنی کرپشن ہوئی نا، ایکو سیاسی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے. اے دوسری پتہ نہیں گھروں کٹ کے لے آیا ہے. کتنے شرم کی بات ہے کہ وہ کھمبے، تاریں، موٹریں، ٹرانسفارمرز، یعنی کیسی اندھیر نگری ہے کہ کوئی انتہائی 3rd کلاس پسماندہ سا ملک بھی ہو، افریقہ کا کوئی ملک ہو، وہاں بھی پوچھ پرتیت ضرور ہوتی ہے. بھائی یہ تم نے سرکاری تار نکالی ہے پرانی، اس میں کاپر ہے، یہ بک جائے گی. یہ پرانے ٹرانسفارمرز ہیں، ان میں سے کئی نئے بھی ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب تو دو. اس کو کہتے ہیں اندھیر نگری. ان پیسوں سے گجرات میں مربے خریدے گئے ہیں بچہ. واہ 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 واہ. شکر ہے مربے پناما نہیں خریدے گئے. یہ پناما کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ ہر بندہ ایک تذکرہ کر رہا ہے. سبزی والا پناما دی گل کر رہا ہے، کلفیاں پناما دی گل کر رہا ہے. میں تے لگتا ہے پناما صبح بنو اس ملک دا. اچھا یہ اسکیم ہے کتنا تقریباً؟ 1 ارب روپیہ صافی انوالڈ ہے اس میں. بابا جی ایتھے خرباں دی کرپشن ہو رہی، تسی 1 ارب نو رو رہے ہو. نہیں، اس میں جو والیوم ہے کرپشن کا وہ میٹر نہیں کر رہا. جو انداز ہے، جو لائن ایڈاپٹ کی گئی ہے، طریقہ واردات سر، جو طریقہ واردات ہے، اور جو ہماری بے حسی ہے، ہماری لا علمی، بے خبری، بے نیازی ہے. یعنی کیسے بے نیاز ہیں ہم کہ فقرے ہیں
और फिर भी अपनी चीजों की हिफाजत नहीं कर सकते। लो बच्चा, अब खरबों की करप्शन भी सुन लो। ये हुई ना बात। आज बाबा बहुत मूड में है। ये नानी दिया बरकतां ने। ये जो शरीफ फैमिली की समंदर पार एहसासों की बात हो रही है बच्चा, जी, इसके पीछे एक अहम शख्सियत का नाम आता है। यानी ऑफ शोर एसेट्स हैं जो शरीफ फैमिली। ऑफ शोर एसेट्स। उस वालिद साहब तो एतबार नहीं। यार मेरे भाईजान है बाबा जी। बिजत बुजत करा के बाद जो मेरे भाई मैंने कब इज्जत करवाया आपको? वो तो ले तू आप काफी है। यही तुम्हारे शागिर्द है मेरा शागिर्द, लेकिन हरकतां एदियां सालियां वालियां। लेकिन भाई ने सिया ने भाई ने इनके भाई ने लेकिन मेरे किसी बड़े भाई ने तो बड़ी इज्जत। जी बाबा जी। वाशिंगटन डीसी में एक 82 साला बाबा जी हैं। बाबा जी यानी नजूमी है कोई? पहले जुगता कर लो। नहीं, मेरा मतलब है तुम बाबा जी नहीं हो हमारे। ओ भाई मेरे ओने इन्हों इस काम ते लाया है। वाह 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 वाह, 82 साला बुजुर्ग। और हैं कौन ये साहब? 50 साल पहले ये शख्स पाकिस्तान एम्बेसी में एक मामूली सा क्लर्क हुआ करता था। अच्छा जी, फिर वो कैसे इन्वॉल्व है? 1968 में बड़े मियां साहब ने उसे पार्टनर बनाया था अपने बिजनेस में। बड़े मियां साहब यानी मियां नवाज शरीफ ने? उन्ना तो भी बड़े। अच्छा जी। फिर? उसे बना के दी इन्होंने एक शिपिंग कंपनी, ठीक। जिसमें इन लोगों ने अपना हिस्सा रखा बच्चा। तो इसमें क्या गलत बात है? ये जुर्म है क्या? और ये सारा मुनाफा उस शख्स के पास जमा करवाते रहे बच्चा। ये जो बाबा जी हैं? बाबा जी। जी। अच्छा जी, फिर? जब जुल्फकार अली भुट्टो ने इनकी फैक्ट्रियों को नेशनलाइज किया, हाँ जी, उसके बाद इन्होंने उसी बंदे से पैसे लेके यूएई में अपनी फाउंड्री लगाई। वाह वाह वाह। तो ये जो कहते हैं कि जब हमारी फाउंड्री छिन गई तो हम बेरोजगार हो गए थे। कोई बेरोजगार नहीं सी होए, धड़ाधड़ पैसा आ रहा सी ते बाहर जा रहा सी। वाह 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 वाह। सर यूएई वाली फाउंड्री का तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है। वाकई उसका कभी तस्करा सुना नहीं। ते एले सासे ने ये तो सुनिया सी। बड़े तुम साफी बनते हो, बाखबर, हर खबर पर नजर। अच्छा बाबा जी, आप लेक्चर ना देना शुरू कर दिया करें। अच्छा मैं चेला ए बाबा अन्नी दा। आप भी हमारे लिए बाबा जी हैं। 1969 में बड़े मियां साहब ने इस बंदे को अपना फ्रंटमैन बनाया बच्चा। तुम्हें इस गल का पता है जो जियोलक ने आके इन्होंने इतफाक फाउंड्री वापस की आई, हाँ जी। नाल पैसे भी दिते हैं 50 करोड़ रुपया। ओए होए होए। हुन ओए होए नहीं पूछो क्यों दिता सी। क्यों क्यों दिया था? इन्हू चलान वास्ते। वैसे उसूली तौर पर मियां साहब, अगर ये हकीकत पर मबनी है बातें, तो आपको एक दफा इनका तज़किरा जरूर करना चाहिए या कोई क्लैरिफिकेशन दे और खुद आके दें, हमारे शो में आए। मैं आपको दावत देता हूं, ये सेगमेंट आपके लिए मुख्तस करने को तैयार हैं। आइए और अपना मौक़िफ़ पेश कीजिए। फिर इसी शिपिंग कंपनी को ज़िया दौर में अमरीकी गंदुम के ठेके लेके दिए गए बच्चा। यानी गंदम की तरसील के लिए? नहीं नहीं गंदम उगान ले। तुहानू पता नहीं किने एंकर बनाया, तुहाडा दोबा लगा है जी। लबनान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, यानी गंदम की ये सारी ट्रैफिकिंग इसी शिपिंग कंपनी के जरिए होती रही। इसका प्रॉफिट किधर है जनाब? ये इस बाबे नहीं उस बाबे ने पूछो। वाशिंगटन में है जो? हाँ जी। अच्छा जनाब, उस बाबे का नाम भी बताइए, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। बाबा सारी जिंदगी ये नहीं दसेगा। क्या वजह क्या है, क्यों नहीं बताएगा? ओए दसी ने गल, मैं तेन इंसान बन जा, मैं तेन आखिरी बार कह रही, मैं तेन दसदे बस। उत्थे 82 साल इको बाबा है। आ वाशिंगटन के शेख साहब ने बड़े मशहूर ने, जाके उन्होंने को रहंदे भी नहीं। शेख साहब वाशिंगटन के इको शेख है, हो सकता है पिछू ओबामा भी शेख निकले। ओबामा ने उथे शेखां जी फुप्पी भी आई है। और सर यकीन करो कीनिया से बड़े शेख ने जिथों ये आया है। कीनिया की चाय मशहूर है वैसे। शेख भी मशहूर ने। वैसे 1980 की दिहाई में ओबामा की वालदा पाकिस्तान में तैनात रही हैं। गुजरावाला में इनकी पोस्टिंग थी। सर नैब तहसीलदार सर? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक में काम करती थी और ओबामा इसी हवाले से यहां पर आके कुछ दिन रह के गए। अच्छा जी, वो बाबे की तरफ जाते हैं वापस। वाशिंगटन वाला 82 साला बाबा कोई शेख साहब है? कौन है? ए शेख साहब दी एक टेक्सटाइल ते 2 शुगर मिला सन। वाशिंगटन में? नहीं ये थे जनाब पाकिस्तान से। बाद च अपने बांजन देती है सन। वो क्यों? सर रईस आदमी आई अरबा डॉलर तो मशवरे देंदा सी शरीफा नु। अच्छा जी, इन शेख साहब का नाम बता दीजिए प्लीज। ए बाबा नहीं दसेगा तो बाबे से पूछता कौन है? मैं एक मोअज़्ज़ज़ आदमी से पूछ रहा हूं। 2 ना तो तुम दसते ने, एक शेख ते 82 साला बाबा।
तीसरा आप भी कोई गेड़ लाओ। अच्छा जनाब, कॉमेडी अपनी जगह पर, ये बातें इस कदर लर्जाखेज हैं, इस कदर संजीदा हैं कि एक गुजारिश हमें हर सूरत करनी पड़ेगी नैब को या उन इदारों को जो तहकीकात कर रही हैं कि शेख साहब को जरूर बुलाया जाए, उन्हें दावत दी जाए, सरकारी खर्च पर बुलाया जाए, उनसे पूछा जरूर जाए जनाब आपकी एविडेंस, आपकी शहादत की जरूरत है। अगर आज आप शहादत देंगे, गवाही देंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो ये कौम हमेशा हमेशा के लिए आपकी एहसानमंद रहेगी। ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और पहला लफ्ज है शीशनाग। बड़ी देर बाद साफ हुआ है। ये शीशनाग नहीं है, हाँ जी, ये पकौड़ा नाक है। ये है सीसनाग। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, मैं कई दफा सुने हैं। लगता सप पंचर हुआ है। सीस कहते हैं संस्कृत में राजा को, बादशाह को, तो ये सांपों का राजा है क्योंकि इसके सर पर क्राउन है, ताज होता है। ये सीसी करन तो इलावा की करता है जी? ये खुद सीसी नहीं करता, जिसको काटता है ना वो सीसी करता है। नाग में और कोबरा में फर्क है। हम कहते हैं ना नाग, ये कोबरा होता है जी। हर कोबरा नाग होता है लेकिन हर नाग कोबरा नहीं होता। अच्छा जो तो सप सामने आ जाए ना, ये नहीं समझ आती कि इन्हें पूछना है कि भाईजान तुसी सीस नाग हो या कोबरा हो। कोबरा है ना, वो क्राउन वाले, फन वाले हर सांप को कहते हैं। ब्राउन कोबरा भी होता है, व्हाइट कोबरा भी होता है, ग्रीन कोबरा भी होता है। वाह। सिर्फ ब्लैक कोबरा को आप नाग कहेंगे। हाँ जी, जी उन्हें कहने देता थे। फिर है एक लफ्ज हकीम। हकीम। सप मौके ने। अच्छा ये अच्छी गल है, सप तो बाद हकीम फौरन आ गया। अच्छा ये हकीम का गलत इस्तेमाल है। हकीम वो नहीं होता जो इलाज करे या हकीम का गलत इस्तेमाल है या उसकी दवाई का गलत इस्तेमाल है? दवाई का, इलाज मालजे का हकीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हकीम की वेल्डर नु कहते हैं सर। अच्छा जी, हुण की कहना हकीम साहब नु? हकीम का ताल्लुक अक्लो खिरत से है, इल्मो फजल से है। जिन्नी हुण तुहानू अकल है, तुहानू हकीम कह लिया करिए। मेरे लिए इससे बड़ा एजाज और सादत क्या होगी कि मुझे आप हकीम कहें, लेकिन मैं उसका अहल नहीं हूं। हकीम जालनूस था, हकीम अफलातून था, हकीम सुकरात था। यानी सर इसका मंबा हिकमत है। हिकमत है। ये जो आप समझते हैं वो तबीब है। हुण दवाई हकीम को लेनी है या तबीब को? या तबीब से। ते जेड़ा मैं पिछले 15 दिनों का कोर्स लै बैठा। तुमने किस चीज का इलाज करवाना? वो सारे नु साइकिल वजी सी, ये ठीक होना चाहता है। साइकिल नहीं, मैनू आड़ू बजा। फिर तुम क़यामत तक ठीक नहीं हो सकते। ये हकीम साहब ने भी किया सी। अच्छा जी, फिर है लफ्ज खजाना। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये खजाना नहीं है, खिजाना है। सर खिजाना है या खजाना, ये कुछ है ना? ये जो इसहाक डार साहब हैं, ये वजीर खिजाना है। मैं भी सोच रहा था सर, वो शक्लों वजीर खजाना नहीं लगते, वजीर खिजाना लगते। अच्छा यो है हल्का या वजीर खिजाना? फिर इस हवाले से हम एक और गलती करते हैं कि खजाना का मतलब समझते हैं मालो दौलत। ये वो कमरा है जिसमें मालो जर, हीरे जवाहरात रखे जाते हैं। तो सर खजाने के लिए कोई और लफ्ज है? कंज है उसके लिए। कंज, अरबी में ट्रेजर को कंज कहते हैं। बड़ी मशहूर किताब है तफसीर की, कंजुल ईमान। और लड़कियों के जो नाम किंजा आप कहते हैं, ये कंजा है। काफ के ऊपर जबर है, जेर नहीं है। सर हर खजाने दे कोल सप क्यों बैठा हुंदा है? ये बात ऐसी ही बनी हुई है कि सांप बैठा हुआ है जी खजाना, वो खजाना तलाश करता है। ये जो दफीने हुआ करते थे ना गए वक्तों में, बैंक्स तो होते नहीं थे, चोरों, डकैतों और उचक्कों का डर होता था। लोग फिर जमीन के नीचे दफना दिया करते थे या बड़े बड़े तय खाने बनाकर उनमें छुपा दिया करते थे, ऊपर से उसको लेवल कर दिया करते थे। तो सांप के बारे में मशहूर है कि वो अपनी बिल में नहीं जाता, वो किसी की बिल पे कब्जा करता है, क्योंकि उसके पास खुदाई का कोई निजाम नहीं है। साउद को केड़ी कही होनी। ये जो चूहे बिल्ले बनाते हैं ना, जो छोटे छोटे दीगर जानवर बिल खोदते हैं, सांप उनमें रहता है। सांप अपने को 4-5 चूहे रखता है एज ए मुलाजिम। कई सांप है जिनका फेवरेट फूड
चूहा होता है। ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ जी, खजाने के हवाले से फिर दौलत का तस्करा आता है। दौलत का भी हम गलत इस्तेमाल करते हैं। वाकई सर दौलत का तो गलत इस्तेमाल ही होता है मैं लफ्ज दौलत की बात कर रहा हूं। दौलत का अच्छा इस्तेमाल भी होता है। यहां लफ्ज दौलत का मतलब लिया जाता है मालो जर, जबकि दौलत का मतलब है हुकूमत, ममलुकत। आपके करेंसी नोट पे लिखा नहीं होता बैंक दौलत पाकिस्तान, जी दौलत मुश्तरका। दौलत मुश्तरका का मतलब है कॉमन वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी मुख्तलिफ नेशंस की हुकूमत। अरबी में इसके लिए माल है, सरवत है। सरवत लोगों ने नाम ही ने। हाँ जी, दौलत भी नाम है। स्कूल में हमारा चौकीदार दौलत हुआ करता था जब मैं बिल्कुल छोटा सा 3.25 साल का था, मुझे याद है। उदों दी भी गल याद है। जी जी, हमारा पहला चौकीदार वो होता था। और उस चौकीदार ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ सर ये कित्थों दी वारदात है? कॉन्वेंट की। वो एडे छोटे से तुहानू दाखिल कराता। जी, हॉस्टलों में, बोर्डिंग हाउसेस में भेजा जाता है। ये पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਔਲਾਦ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੌਸਲਾ ਜੀ ਕਿ ਜਾਓ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ये बड़ी हद तक दुरुस्त है। मैं बहुत शरीर हुआ करता था। था से क्या मुराद सर अच्छा, ये करना है कि नहीं? ਇਹ ਆੜੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਟਲ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ फिर ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ आप भी हॉस्टल में गए हैं निडाल साहब? हाँ जी बिल्कुल गए। सफेदीकरण एक लफ्ज है सूफी। जी स्वाद वाव फे छोटी है। मौलाना शिबली नोमानी का इस्तदलाल ये है कि ये स्वाद से नहीं, सीन से है सूफी। और ये ग्रीक वर्ड है, सोफिस्ट से आया है। और सोफिस्ट जो है वो थे जो इल्म दानिश की बातें किया करते थे। सर फिर कोई वजह तो होगी जो ये स्वाद से शुरू हुआ है। अरब्स की वजह से, क्योंकि अरब लोग भी बड़े अक्लो खिरत वाले लोग होते हैं, बड़ी बड़ी दानाई की बातें करते हैं। और आमतौर पर वो अजीब सा चोगा पहना करते थे। उनका चोगा ऊनी, वो हर मौसम में, सर्दियां हो गर्मियों, वो वही मोटा कपड़ा पहना करते थे जो सूफ कहलाता है। स्वाद से सूफ, सूफ कॉटन को कहते हैं। जो खद्दर होती है ना, मोटी खुरदरी, उसको सूफ कहते हैं। तो सूफ से ये स्वाद वाला सूफी चलने लगा। आड़ू आपने कभी वो पहना सफूफ सूफ नहीं, कड़ा होता। ओ सूफ। मैंने एक दो दफा पहना जब मैं अरबों में था। दूरों लगता सी बिल्डिंग टूरी आ रही अच्छा, आपका भी इसमें कोई लगाव है? ये जो लगाव है तो सुन रहे हैं ना, नहीं आगे से बहस नहीं करते जैसे तुम करते हो। निडालड़ के पता ना सप वेख के गाल काट देते ने ओ सर छड्डो सपा सुपा नु कोई शेर सुनाओ प्लीज। शेर फिर पुराना है। सर ਤੁਹਾਡੇ पहले शेर को चुक के ले गया की वजह मैं की? वही दोहरा रहा हूं। आजकल दोहराई हो रही है शेरों की। अच्छा दुराई हो रही है। हाँ तो और क्या। चलो सुना दो। नजीब अहमद का शेर एक दफा पहले पेश कर चुका हूं। कुछ शेर ऐसे हैं जो पहले 2-2, 3-3 दफा कर चुके हैं, लेकिन ये शेर एक दफा हमने आज से कुछ तकरीबन 3 साल पहले गुज़िश्ता शो में किया था। आज फिर उसकी बारी है। नजीब अहमद साहब कहते हैं कि ये जवानी भी बुढ़ापे की तरह गुजरेगी। वाह 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 ये जवानी भी बुढ़ापे की तरह गुजरेगी। उम्र जब काट चुकूंगा तो शबाब आएगा। क्या बात वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, आज जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं, इत्तेफाक से पहली मर्तबा वो एक गैर फिल्मी गाना है जो एक तरह की एक्नॉलेजमेंट है 2 फनकारों को। एक तो वो महान कंपोजर और सिंगर जिसने ये गाना गाया, ऑफ कोर्स नुसरत फतेह अली खान। इस गाने का म्यूजिक अरेंज किया एम अरशद ने, जो एम अशरफ के साहबजादे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये एक जेस्चर है उस यंगस्टर के लिए जो इंडिया में एक कंपटीशन जीत के आया था जिसे छोटे उस्ताद का टाइटल दिया गया। मून इनका नाम है, फैसलाबाद के ये उभरते हुए फनकार हैं। जी जनाब। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल
दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। खुदा दुश्मन किसे नू भी हिजर दा रोग ना लावे, ज़माना मारदा ताने जुदाई जान पई खावे। सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। बेपरवाही आदत तेरी, ए रुजियां जा रखियां, सुतड़े बाग ना जागे मेरे, सोण ला दे अखियां। सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तन भी प्यासा, मन भी प्यासा, तेनू कौन बुलावा, तू आवे ते जान ना दे, जावे ते मर जावा। सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना,
सजना तेरे बिना। ब्रावो ब्रावो। वेलकम बैक जी। खबर है कि मिसमैनेजमेंट के हवाले से पाकिस्तान एशियाई ममालिक में दूसरे नंबर पर आ गया। ओवरऑल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा विक्टिम है। बैड मैनेजमेंट सबसे ज्यादा अगर नजर आती है तो लॉ एंड ऑर्डर में नजर आती है। कुछ भी ना करें, हर चीज छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ राजनपुर को आप गौर से देख लें कि 8 जिलों की पुलिस अब तक छोटू गैंग को नहीं पकड़ सकी। वो एक शख्स है जिसने 100 बंदों के एक गैंग से पूरे पंजाब की पुलिस को तिगनी का नाच नचा दिया। अब उसके लिए गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी मांगे जा रहे हैं, उसके लिए और कुमत मांगी जा रही है। ये एक डकैत को नहीं पकड़ सक रही इस पुलिस का, आगे जाके क्या बनेगा। लेकिन मेगा प्रोजेक्ट्स को देखें तो जो सामान, जो बजट कहीं से बचा खुचा भी है वो उठाकर इसमें झोंका जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। जिस तरह मुगल शहनशाहों को कोई पूछने वाला नहीं था और यही शुतर बे मुहारी उन्हें ले डूबी, इनके साथ भी यही कुछ होता नजर आ रहा है। हद अदब! लेकिन हमने अपने दौर में पुलिस का निजाम बहुत बेहतर किया है। क्या बेहतर किया था तुमने? ये सारी सड़कों और शाहराहों पे जो चौकियां बनाई, किसने बनाई है? हमने बनाई है ये। और तुमने कहा बनाई है? दुआएं दो, शुक्र करो कि शेरशाह सूरी तुम्हारा दुश्मन था, 5 साल के अंदर अंदर बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। उसने तुम्हें ये सेटअप दिया था, ये पेट्रोलिंग पोस्ट्स उसने बनाई थी। क्या ले नारकली, ये मुझे कह रहे हो? और तो पीछे को खलोता है। ये नशे च अपने प्यो ਨੂੰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। झूठ बोल रहे अब्बा ने तुम्हें नीला गुंबद कहना, बल्कि मोटा गुंबद। तुम गौर नहीं कर रहे साडी ड्रेसेस थे? क्या है ड्रेसेस में? नवे कपड़े बनवाए ने। ये कहां से बनवाए तुमने? तुम तो फुकरे थे, पैसा ही कोई नहीं। अब्बा ने कहा नवे कपड़े पा लो, हो सकता किसी वेले भी फड़ जाइए। पकड़े कहां जाए? ਪਨਾਮਾ ਲਈ ਕਰਾ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੋਟੂ ਗੈਂਗ। उस्ताद मोहतरम, मेरा नहीं, शहजादे का नाम है। शहजादा भी तुम्हारा ही है और किसका है? ਹੋਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ? सर गल सुनो। हाँ जी। अब्बा तो कुछ करो, मन बड़ी टेंशन है अब्बा दी। क्या है टेंशन इसकी? दिन रात परेशान रहते ने, राती नींद नहीं आती। ये पहले सोचना था ना, बिजनेस का इतना खिलारा करने से। ये वो बदनसीब हैं जिन्होंने सिर्फ 1 अरब रुपया सुन रखा है, उन्हें एहसास नहीं कि 1 अरब रुपया कितना होता है। वो सिर्फ बैंकों के पेट भरते चले जा रहे हैं, इन्हें नहीं पता कि ये किसी के काम नहीं आना, इवन इनके बच्चों के काम नहीं आना। और अगर इन्होंने ठेका ले रखा है अपनी अगली 7, 8, 10 नस्लों को संवारने का, तो ये एक फजूल काम था, उससे बहुत बेहतर था इस कौम के हालात बेहतर कर देते। इन्हें दुआएं देती ये कौम। ये बाल्ज़क के साथ मैं हमेशा एग्री नहीं करता जब वो कहता ना, बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। मैं समझता हूं कि बगैर क्राइम के भी बड़ी फॉर्चून्स बन सकती हैं, लेकिन हद से ज्यादा तजावुज कर जाने वाली फॉर्चून्स के पीछे आमतौर पे क्राइम ही होता है। ये जितने हुक्मरान, जितने बिजनेसमैन हुकूमतों से चोरी छुपे ऑफशोर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि उनके पीछे क्राइम ना हो। ये क्राइम ही का शाखसाना है। और सर पैसे आजकल बनते की है, महंगाई नहीं देखी, इधर आंदा इधर खत्म हो जाता है। और महंगाई के बावजूद तुम्हें यह पता है कि 1 अरब रुपया होता कितना है? कितना होता है जी? 1 अरब रुपया मैं पहले भी बता चुका हूं, यह बात मैं 20 मरतबा आइंदा भी बताऊंगा कि अगर आपके पास 1 अरब रुपया है, कान खोलकर सुनिए, हजरत यसु मसीह अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक आप अगर डेली 1000 रुपया खर्च करें तब भी आपके पास अगले 723 साल के लिए पैसा मौजूद रहेगा, पैसा खत्म नहीं होगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ, ਕੋਠੀਆਂ नहीं पाइयां। रोज का पेट्रोल पावा भी। मैं सिर्फ सब्सिस्टेंस लेवल की बात कर रहा हूं। एक आदमी डेली 1000 रुपया खर्च करे तो वो जिंदा बड़े आराम से रह सकता है। और ਇਹਦਾ जो है ना असिस्टेंट लेवल ਇਹਦਾ बहुत ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। और भाई जी इधर मेरे सुनो। हाँ जी, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। और यार मैंने 50 दफा वजाहत दी है कि मैं खिलाफ नहीं हूं। ये चंद बदनसीब है तुम जैसे जो समझते हैं मैं मुगलों के खिलाफ हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे तायुश के खिलाफ था, तुम्हारी मिसमैनेजमेंट के खिलाफ था। जो कुछ असी कीता है एक खाता है सारा। आपने अगर कुछ किया है ना तो रेवेन्यू के फील्ड में किया। क्यों? आप रेवेन्यू में इंटरेस्टेड ज्यादा थे, आपको टैक्सेस का बड़ा शौक था। मैं तो समझता हूं आपसे
अगर किसी ने लीड ली है, कोई दर्स लिया है, तो वो इसहाक डार साहब है। वो डेफिसिट फाइनेंसिंग किए चले जा रहे हैं, नोट छापते चले जा रहे हैं और टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। अबे जिन्हों 1 अरब रुपए की समझ नहीं आई। ये जो मैंने इक्वेशन बताई है, हाँ जी, ये जो तुसी इक्वेशन दसी ना, हाँ जी, और उन्हें 10 अरब रुपए दे इन्ने इन्ने दुम्बे, इन्ने दुआने, इन्ने खुरपुजे। अबे जी इधर देखो, इन्ने शीश तबूक ऊंट। अब भाई क्या बात है? इजाजत हो तो मैं बैठ जा। बैठ जाओ शहजादे, हम बहुत उदास हैं। तुम्हारे ये बुरे दिन इसीलिए आए ना कि तुम तायुश में पड़ गए थे। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਯੂਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਈ ਨੂੰ ਪੜ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਨੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਿਆ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਯਕਾ-ਯਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? हाँ जी, परेशान है तो इंग्लैंड गए हुए हैं ना आजकल। ਤੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਮੋਟਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਉਸਤਾਦ ਹੋਈ, वो कौन? ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੋਰ ਕੌਣ? अलीजा अनारकली दरबार में हाजिर होना चाहती हैं। अनारकली को बुलाया जाए। जो हुक्म अलीजा। अनारकली हाजिर हो। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਹੈ? ये मेरा ख्याल पुरानी है ना अनारकली। अदाब से है हुजूर। आइए आइए। आदाब वाली जा। ਓਏ ਉੱਠ ਜਾ, ਬਹਿਣ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ। और तुम्हें नहीं कहा उसे? ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਆ, तुम तो बादशाह हो। तो मैं इसे चाह देना। ਅਜੇ ਸਲੀਮ। हम भी सलीम हैं। अनारकली हाजिर हो। अनारकली है और लेला बुलाया सी। अनारकली जी बादशाह सलामत। तशरीफ रखिएगा। अनारकली ने दिलेर मेहंदी के कपड़े पाए। कैसी हैं अनारकली? बादशाह सलामत, मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। इजाजत है। बादशाह सलामत, देखो तो सही मेरे उस्ताद का की हाल होया पिया। हम इनका इलाज करवाना चाहते हैं, कुछ मालोजार इनायत किया जाए। कित्थों? ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਡਾਂਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। कहाँ पड़ गए? ਆਫਸ਼ੋਰ। ये तो है बादशाह और शहजादों के पकड़े गए, तुम्हारे भी हैं। ਮੇਰਾ ਵੀ 250-300 है। बादशाह सलामत, क्या बात है? मैं चाहती हूँ मेरी तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफा किया जाए। गासो तू बादशाह नु तनख्वाह दे सकती। अनारकली शहजादा ठीक कह रहे हैं। हुण ते असीं आप तनख्वाह दे मुस्तहक। अगर एहतसाब होता मुगलिया दौर से लेकर आज तक, तो तुम ज़कात के मुस्तहिक होते। निकल चलिए, हौली हौली ने सानू इशारे ते ले जाना। उस्ताद मोहतरम जी मैं उस्ताद तू नहीं। ये मेरे उस्ताद मोहतरम है। हमारे ये उस्ताद मोहतरम है। ए भी नाचे ने। चाचा मैडम क्या बात है? ऐ ते हालात होए पे ने। मैंने पहले ही शायद से मेरा अब्बा है। शहजादे हमारे पास पैसे तो होते नहीं, नशा कहाँ से करते? एक चीज होती है बेटा, हजार। क्या? हजार। नहीं, उधार लेते कहां से हो? तुम्हें दे कौन सकता है? AIMF मर गए, वर्ल्ड बैंक नहीं गा। ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਉਧਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਬੜਾ ਮਸਕੀਨਾ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सलीम, इस बदनामी से बेहतर है कि मैं इस्तीफा ही दे दूं। एडी तो डेविड कैमरॉन। वैसे बदनामी के डर से पूरी दुनिया इस्तीफे दे रही है, लेकिन ये इनका वही हाल है, जमीन जुम्बद ना जुम्बद गुल मोहम्मद। ये आप लोगों के बारे में कहा। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੀ ਫਿਕਰੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਬੋਸ਼। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕੌਣ? और कर लिया या तू तो नहीं गुल मोहम्मद? नहीं नहीं वो भी नहीं हैगा, ये भी नहीं हैगा, ना मैं आ ते ये सलीम है। मैंने लगता सादक ही होना ही। सादक नहीं, अनारकली है। अगर ये अनारकली तो गुल मोहम्मद किथे गया है? उठ बादशाह, साडा गुल मोहम्मद गवाचिया होया है, तलाशी दे। ये क्या बदतमीजी है? बादशाह सलामत, तेरी कोई गल रह गई? अभी तो बातें शुरू हुई हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई। अभी तो पार्टी शुरू हुई। अच्छा, सब नाच रहे हैं, जितने हुक्मरान हैं और उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं सब नाच रहे हैं। जो बेचारी असल रक्कासा है वो डिसेंट होके बैठी हुई। बादशाह सलामत, क्या बात है अनारकली? ए की पुआड़े पैग ने चंगी भली साडी हुकूमत चलदी पई सी। अच्छा अनारकली, ये हुकूमत रवे या ना रवे, तू अपना लहजा देख रही तेरा की?
ਲੋ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗੀ? सारी दुनिया पनामा पनामा करन दी, मैं कर ली तो की हो गया? क्या अच्छा लहजा है तुम्हारा। ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਜਾ? मैं इन्ना पनामा लीग तो नहीं डरिया जिन्ना ਇਹਦੀ आवाज तो डरे हैं। आप बड़े खामोश हैं, आपको बात नहीं कर रहे। अलम पन्ना मेरी बात तो अनारकली ने कर दी, मैं बीमार हूँ। अच्छा तू जो दरबार च आया से तू इंज ही से? ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸੀ। बल्कि दाई ने दी मां नु क्या तेरे घर इंज होए? हम आपके लिए कुछ सोचेंगे। ਆਧਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ? ਆਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ये क्या बदतमीजी है, रोज मुंह उठा के आ जाते हो दरबार में। ਐਡਾ ਰੋਬ ਨਾ ਦਿਖਾ। ਤਾਂ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਹੀ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਅਨਾਰਕਲੀ ਹੋਏ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅਨਾਰਕਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। क्या बदतमीजी है तुम? बैठे रहो। ਕੀ ਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਖੜੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲਿਆ। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।